recording. Hi. Yeah, we are on to measure effects of heat part 2. ये हम सबकी मेमोरी है, YouTube वीडियो में रहने वाली है बनी, मेरी पब्लिक नहीं होगी, भी रहेंगी. Hi. 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 Hi sir. Hi sir. Hi future. दिया पलक तुम लोग भी अभी हाय बोल दो. Hi. ए पर्थ चापले हाय बोल. Hi. Hi sir. Hi. देव Hi सोलंकी sir. Hi sir. तुम लोग हाय बोल दो. Hi sir. Hi sir. Hi sir. Hi sir. हाँ अभी म्यूट हो जाओ, अभी आगे चालू हो रहा है ये हमारा यूट्यूब वीडियो. Hi sir. चलो क्या अपलोड कब होगा? सब लोग म्यूट हो जाओ. अभी सुनो, आप लोग ने you fill some, take two vessels A and B of the same size, fill some water in A and double that amount in B. बराबर. Make sure that water in both the vessel is of the same temperature. Raise the temperature of water in both the vessel by 10 degrees Celsius using a spirit lamp, यानी कि नीचे से अपना गर्मी प्रोवाइड करके. Now, will it take the same time to increase the temperature in the two vessels? क्या सेम टाइम जाएगा दोनों का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में? No. नहीं. sir. ज्यादा टाइम जाएगा. बी में ज्यादा टाइम होगा. ज्यादा टाइम जाएगा. ऐसा क्यों? तो उन सबके सवालों के जवाब अभी हम देखेंगे. Vessels are at the same temperature. Yes. 3. Raise the temperatures of water in both vessels by 10 degrees Celsius using a spirit lamp. Did it take the same time to increase the temperature in the two No. vessels? No. The time taken to increase the temperature of water in vessel B is more than that taken by vessel A. You must have required more time to raise the temperature of water in B. This means that for the same increase in temperature, you had to give more amount of heat to B. Yes. Thus, even though the water in A and B have the same temperature, the amount of heat in B is more than that in A. Temperature is measured in units of Celsius. Very important. Temperature is measured in units of Celsius. Degree C, Fahrenheit, degree F, and Kelvin, K. Kelvin is used. यार ना C, F और K. Very important. Underline करो इसको. Kelvin is used in scientific experiments only, and Celsius and Fahrenheit are used in daily life. Used in scientific experiments, while the other two are used in daily life. The relation between the three units is shown by the following formulae. F minus 32 by 9 is equal to C by 4. The most important textbook में आप देख रहे हो KFC. Yes. Yes sir. टेक्स्ट बुक में देखो F minus 32 upon 9 is equal to C upon 5. K is equal to C plus 273.15. ये दोनों इक्वेशन आप आज 10 बार लिखोगे. आज का पहला होमवर्क. रिहान याद रखना भाई, और बाकी सब भी. 5. Let this be equation 1. K is equal to C plus 273. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. प्लीज 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 ये 10 टाइम्स लिख के ये बाय हार्ट होना चाहिए. कल अगर मैंने किसी को रैंडमली पूछा और उसको नहीं आना तो ये मैं 30 टाइम्स दे दूंगा. F minus 32 upon 9 is equal to C upon 5. And K is equal to C plus 273.15. अभी आप समझ सकते हो. आपको है ना K पूछा होगा, केल्विन पूछा होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिया होगा. या तो सिर्फ फ़ारेनहाइट दिया होगा और सेल्सियस और केल्विन ढूंढना होगा, या तो सिर्फ केल्विन दिया होगा, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ढूंढना होगा, या तो सिर्फ, समझ में आया ना, KCF या तो KFC, वो चिकन वाला जो भी है वो. KFC में से कुछ भी देंगे, एक देंगे, बाकी का 2 ढूंढना है. बराबर. हाँ तो 273.15 वो F है कि उसका वैल्यू है? वो एक वैल्यू है. वो वैल्यू ऐसा क्यों लिया है उन्होंने? 32 वैल्यू क्यों लिया है? C upon 5 वैल्यू या 9 क्यों लिया है?
क्योंकि इन तीनों में फर्क उस हिसाब से है। f minus 32/9 is equal to c upon 5 and k is equal to c plus 273.15 बराबर 0.15. 5 Let this be equation 2. First, boiling अभी बच्चों हम लोग को है ना ये टेबल बाय हार्ट करना है। जिसको कैमरा ऑन ऑफ रखना है वो करो, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ, मैं ये करवा रहा हूँ, कंसंट्रेट एंड फोकस ऑन। अभी ये मेरे साथ अभी लर्न करना है आप लोग को। हम लोग अपने हिसाब से जिस तरह कॉमेडी बना के जो करने का है वो लर्न करो। फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, रूम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी, freezing point of mercury. Some specific temperature are given in the 3 scales in the following table. Verify that they satisfy the above relation and fill appropriate numbers in the blanks. मतलब क्या, ये आपको बाय हार्ट तो करना ही है, प्लस ऐसे सम्स भी आएंगे। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, boiling point of water, given that boiling point of water is 100 degrees Celsius. 100 degree Celsius. The relation between Fahrenheit and Celsius scales is given as F minus 32/9 is equal to C upon 5. Therefore, right hand side is equal to 100/5, which equals 20. Consider left hand side is equal to F minus 32/9, which equals 212 minus 32/9, which equals 180/9 equal to 20. Hence, left hand side is equal to right. देखो f minus 32/9 is equal to c upon 5 बराबर आया ना? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. आया ना? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है बराबर। f कितना है? 212। RHS क्या है? 100/5 बराबर f minus 32/9, तो फ़ारेनहाइट 212 है बराबर माइनस 32/9 180/9 20। RHS c/5 है, c कितना है? 100 100/5 = 20। LHS is equal to RHS। समझ में आया बेटा? हाँ सर। यस सर। आया ना? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. Right hand side. Therefore, F is equal to Yes, 212 degree Fahrenheit. In Kelvin, K is equal to C plus 273.15, which equals 100 plus 273.15, which equals 373.15 Kelvin. Second, freezing point of बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फ़ारेनहाइट में 212 है, सेल्सियस में 100 है और केल्विन में 373.15 है। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब पानी 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे उसके बाद वो कन्वर्ट होने लगता है स्टीम में। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक कूल करोगे तो उसके बाद वो बन जाता है बर्फ। ये सबको पता है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। एक मिनट है बेटा, आगे का देखो आप लोग। of water. Given that freezing point of water is 0 degrees Celsius, using relation F minus 32/9 is equal to C by 5. Right hand side is equal to C by 5 is equal to 0. Consider left hand side is equal to 32 minus 32/9 is equal to 0. Therefore, left hand side is equal to right hand side. In Kelvin, K is equal to 0 plus 273.15 is equal to 273.15 Kelvin. But given value is 273 Kelvin. To satisfy the relation, K should be 273. ये समझ में आ रहा है बेटा? ये 3 चीजें दी हुई है, ये सबको पता ही है, तो ये वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या सच्ची में ये फॉलो होता है क्या? तो हाँ, ये फॉलो होता है। रूम टेम्परेचर भी यही है। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी का आपको ढूंढना है। ये मैं सम इसमें नहीं बताऊंगा, ये आपको ढूंढना है।
अभी पहले इतना समझ में आया? सर Yes, वो sir. 273 Yes, केल्विन sir. था तो वो 273.15 होना चाहिए ना? हाँ सर. ये बेटा सर आंसर आया है 273 केल्विन, पर वो होना चाहिए 273.15 ना? हाँ, वो पॉइंट का चलता है बेटा, थोड़ा बहुत इधर उधर यस सर. आया ना? हाँ सर इसमें हमेशा LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा. सॉरी बेटा, इसमें हमेशा LHS इज इक्वल्स टू RHS होगा. ये वेरीफाई कर रहे हैं हम कि भाई क्या सच्ची में ये है। इन लोग ने बोला कि भाई F-32/9 इज इक्वल टू C/5, बराबर। ये Yes. एक इक्वेशन है, वो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? तो हमने पानी को लिया, तो पानी का हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट 100 है, F212 है और K 373.15 है, तो ये सबको पता ही था कि है ही। फिर हमने ये वैल्यूज को ये इक्वेशन में डाला F-32/9 और C/5 बराबर। तो RHS C/5, तो हमें पता है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर अपना RHS सेल्सियस में 0 डिग्री है, बराबर। तो हमने 0/5 तो 0 है। अब हम देख रहे हैं कि इसी इक्वेशन में LHS F-32/9, अब LHS हमें दिया हुआ है कि फ़ारेनहाइट में 32 है, तो 32 - 32/9 0, तो 0/0 LHS इज इक्वल टू RHS। तो हाँ, ये इक्वेशन तो राइट है। समझ में आ रहा है? हम इस इक्वेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। इक्वल टू RHS देन. हाँ, यानी कि देखो ये इक्वेशन है, बराबर F-32/9 इज इक्वल टू C/5। अब पलक पूछे, मुझे विश्वास ही नहीं है ये इक्वेशन राइट है। तो हमने बोला ओके शांत पलक, हम लोग ने वाटर को फ्रीज किया, तब उसका सेल्सियस में टेम्परेचर गिना, तो वाटर का सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था, फ़ारेनहाइट में 32 था, केल्विन में 273 था। ये हमें पता चल गया, हाँ या ना? फिर हमने उसको इस इक्वेशन में डाला। पहले हमने LHS देखा, लेफ्ट हैंड साइड F-32/9, F हमारे पास कितना दिया हुआ था 32, तो 32 - 32/9 अरे 0। चलो अच्छा, अभी हम RHS की वैल्यू गिनते हैं C/5, तो C/5 तो सेल्सियस 0/5 0। अरे ये इक्वेशन सही है। अभी पलक खुश हुई, मगर पलक ने बोला नहीं, आपने बोला है K इज इक्वल टू 0 + 273.15, केल्विन कितना है 273, तो चेक करवाओ। मैंने बोला ओके, वो भी चेक करवा देता हूँ माँ। केल्विन इज इक्वल टू 0 + 273.15 सेल्सियस प्लस, तो देखो इतना ही आता है, थोड़ा सा फर्क है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। समझ में आया? सर अगर हमें 1.15 लिखना है तो हम लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हो आप। 3.15. Third, room इसी temperature. तरह रूम टेम्परेचर का है, Considering room temperature to be 23 23 degrees Celsius, using relation सेम F minus 32 by 9 is equal to C by 5. Right hand side is equal to C by 5 is equal to 23 by 5, which equals 4.6. Left hand side is equal to 72 minus 32 by 9, which equals 4.44. Therefore, left hand side is not equal to right hand side. For left hand side to be equal to right hand side, यहाँ पे तो रूम टेम्परेचर में तो गड़बड़ हो गई भैया। F - 32/9 इज इक्वल टू C/5 करने लग गए, तो F फ़ारेनहाइट तो इज इक्वल टू C/5, राइट हैंड साइड C/5, सेल्सियस 23/5 4.6 हुआ, लेफ्ट हैंड साइड 72 - 32/9 4.44 हुआ, यानी कि LHS और RHS बराबर नहीं F है। minus 32 by 9 is equal to 23 by 5. Therefore, F minus 32 is equal to 41.4. Therefore, F is equal to 73. हाँ, तो इससे वेरीफाई करने गए तो हमें पता चला F की वैल्यू जो इधर दी हुई है वो रॉन्ग है, तो F की वैल्यू होगी 73.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0.4 degree Fahrenheit. समझ में आया? In Kelvin, K is Change equal to करनी C पड़ेगी। plus 273.15. Substituting the values, K is equal to 23 plus 273.15, which equals 296.15 K. But given that K is equal to 296, to satisfy the relation
यानी कि समझ में आ रहा है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम लोग वो 0.5 इस वैल्यू में ऐड कर देते हैं और याद रखते हैं कि अभी से इसकी वैल्यू ये है। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, सर अगर हाउ डिड वी गेट 41.4? 41.4 कैसे मिला हमें बेटा? देखो f - 32/9 = 23/5, 5 4 = 20, 3 आया 0, 5 1 = 5, 41, 5 / 23 करो तो 41.4 आता है। नहीं सॉरी ये 9 जो है ना बेटा वो इधर डालेंगे हम लोग। f - 32 = 23/5 × 9, 23 × 9 कर दो कितना होता है, और उसको डिवाइड बाय 5 करो तो 41.5 आएगा, 41.4 आएगा। यस सर आया। समझ में आया बेटा? yes sir, जिगर भाई, जिगर वो 9 इधर जाएगा तो 23/5 × 9 आएगा, तो 23 × 9 करो, डिवाइड बाय 5 करो। सर बाद में हम लोग को 32 को उस साइड डाल के प्लस करना है ना? हाँ बेटा बाद में, हाँ 32 ये बात जाके प्लस, तो f की ये वैल्यू आएगी, इसलिए f की जो यहाँ पे वैल्यू दी है 72 और रॉन्ग है, हाँ सर, 73.4। yes समझ sir, में आया बेटा? yes sir, yes sir, 0.15. आगे के ones आपको check- Fourth, boiling point of mercury. Given that boiling point of mercury is चलिए अभी ये सम करके बताइए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी 356.7 है, डिग्री सेल्सियस है, तो मुझे फ़ारेनहाइट और केल्विन ढूंढ के बताइए। एवरीवन स्टार्ट, फ़ारेनहाइट और केल्विन ढूंढ के बताओ, देखते हैं कौन सबसे पहले करके देता है। स्टार्ट is 356.7 degrees Celsius. Using relation f minus 32 by 9 is equal to 356.7 by 5. Therefore, f minus 32 is equal to 1.8 into 356.7. Therefore, f minus 32 is equal to 642.06. Therefore, f is equal to 6. बेटा यहाँ पे है ना 3 आया, अब 3 है ना 3, मुझे और एक 0 चाहिए, मुझे 642.0 लेना पड़ेगा, तो मैं इधर 0 लूंगा और 6 तो 30 आएगा बराबर। 642.06 प्लस 32, समझ में आया? (674.06 degree Fahrenheit). In Kelvin, K is equal to 356. केल्विन का फॉर्मूला क्या है? K is equal to C plus 273। हमें C मिल चुका है, C हमारे पास है, C plus 273.15 करे तो हमें केल्विन मिल जाएगा। 0.7 plus 273.15, which equals 629.85 Kelvin. Hence, the correct conversions according to the relations between different scales and temperatures is चाहिए बेटा, 10 मिनट जरा ध्यान देना पड़ेगा। ये समझ में आया? given in the table. Boiling point of water is 212 degree Fahrenheit, बाकी के दो सम घर पे 100 करने क्या तुम degrees लोग को? Celsius, होमवर्क है। and 373.15 degree Kelvin. Freezing point of water 32 degree Fahrenheit, 0 degree Celsius, 273 degree Kelvin. Room temperature is 72 degree Fahrenheit, 23 degree Celsius, 269 degree Kelvin. Boiling point of mercury नहीं ये पूरे का पूरा, ये 5 के 5 करने के बाद 674.06 degree Fahrenheit, उसके बाद वाला सम 356.7 degree Celsius, 629.9 degree Kelvin. Freezing point of mercury
minus 39.84 degree Fahrenheit, ये बाद में आपको सम पूरा minus करना है। 38.8 degree ये Celsius, माइनस का, इससे there will be a lot of issues. 234.3 degree Kelvin. बाद में इधर सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं। Solved examples. 1. How much will the temperature of 68 degree Fahrenheit be in Celsius and Kelvin? Answer given. Temperature in Fahrenheit is बेटा ये सम्स करने को आने चाहिए, भले स्कूल में ओमिट हो, तुम लोग को ये सीखने का है। स्कूल में, हमारे स्कूल में नहीं है, वैसा नहीं, ज्ञान के लिए कोई बॉर्डर नहीं होती बॉस। ओमिटेड है तो भी क्या है, सीखना चाहिए, आगे काम लगेगा। is equal to F is equal to 68. What is temperature in Celsius और केल्विन equal to C? बेटा ये सम्स आप लोग कर लेंगे, दोनों सम्स है, प्लीज प्रैक्टिस करने के हैं। Thermometer. अभी You must थर्मोमीटर, have seen the thermometer that is used when someone at home has fever. बच्चा लोग हेलो, होमवर्क ध्यान से सुनो प्लीज। ये पूरा टेबल आपको वापस करने का है, ये जो मैंने मार्क करवाया था ना पेज 96 पे, द एटम्स इन अ सब्सटेंस विल आल्सो बी इक्वल तक, वो आंसर पूरा दो बार लिखना है, वो वन आंसर टू टाइम्स। बाद में पेज नंबर 97 पे, temperature is measured in units of Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Kelvin is used in scientific experiments while the other two used in daily life. The relation between the three units is shown by the following formula 1, 2. ये भी आंसर दो बार, तो ये दो आंसर हुआ। ये पूरा टेबल वापस करना है, और ये जो दो सम्स है ना वो दो बार करना है। उसके अलावा आई वांट यू पीपल के आगे का पूरा चैप्टर एडवांस में पढ़ के आओ, प्लस टेक्स्ट बुक बैक सब करके जाओ, जो भी मैंने अब तक करवाया वो बराबर अपने आंसर्स बनाओ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो प्लीज, हाँ, वरना गलत है। अब मुझे थर्मामीटर करवाना है, मुझे आपकी 10 मिनट चाहिए। थक गए हो कि थर्मामीटर करवा दूं? क्योंकि फिर कल है ना स्पेसिफिक हीट कैलोरी मीटर का पूरा कॉन्सेप्ट जाएगा, और फिर बाद में परसों और एक दिन लगेगा। हाँ, वो 2 फॉर्मूलाज 10 टाइम्स हो लिखो तो बेस्ट है, मगर वो इतनी बार अगर करोगे तो अपने आप हो जाएगा। हाँ जयनी, आप मत करना। अच्छा, आप लोग के फ्रेंच क्लास है तो आई एम लिविंग यू नाउ। कुछ लोगों के बाय बोल दो यूट्यूब को, बाय।